Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, we are going to discuss a very important topic, that is type conversion. In previous session, we had talked about the associativity and precedence. If you didn't see that video, please go through it. Okay. In this session, I'm going to discuss about what is type conversion and what are the different types of type conversion. So first, we need to understand what is type conversion and what is the purpose of type conversion in Java. So here is the topic name, type conversion. Type conversion. Type means beta data type. Type means data type. Conversion means to convert from one data type to another data type. To convert from one data type to another data type. ठीक है? Another. Clear? Type means data type like int type, float type, ठीक है? Double, long. Conversion means to convert from one data type to another data type. Another data type. Clear है? ये है टाइप कन्वर्जन. ठीक है? टाइप कन्वर्जन की original definition. But why we are using type conversion? As you know very well, whenever an arithmetic expression that consists of constant and variables of same data type, the resultant of that expression will also be the same data type. Like if you are taking integer type variable x is equal to 20, int again integer data type, y is equal to 30. Okay, and here you are going to print value inside SOP, that is system.out.println x plus y. So what will be the resultant? Resultant will be 20 plus 30, that will be 50. That is also an integer type because you are adding two numbers of integer data type. Two numbers, which kind? Data type, integer type. Okay, so these are what data types and these are the variables and these are the values stored in x data type and x variable of integer data type, and this is the value that is going to be stored in y variable of integer data type, and resultant also is 50, that is integer data type. So if the data type x or y is integer type, then resultant expression will be same. सपोज दैट अनदर एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है. जिन्होंने एक्सप्रेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू इट. इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है. सेकंड लास्ट वीडियो था एक्सप्रेशन पे और लास्ट वीडियो था एसोसिएटिव और प्रेसिडेंस के रिगार्डिंग. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो थ्रू इट. प्लस 25 इज ऑल्सो इंटीजर नंबर, x is also integer type, y is also integer type, so 20 plus 30 plus 25 क्या वैल्यू आएगी बेटा? 50 plus 25, that is 75. ये कैसी वैल्यू होगी बेटा? This is which kind of value? This is integer type. क्लियर है बेटा? चलिए अब टाइप कन्वर्जन की क्या नीड हुई? A type conversion take place when an arithmetic expression consists of constant and variables of different data types. Means what? If you are taking int x is equal to 20, another variable that I am taking float type y is equal to 30.0 f, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था बेटा 0f. ठीक है. Now you are going to add these two values. ठीक है, x plus y, 20 plus 30, 30.0 you can write, or 30 f you can write. It is a float type, that's why I have represented by decimal point, that is 0.0. You can write anything. ठीक है. So now what will be the resultant? The resultant will be 50.0, not 50. What is this? We have to discuss this. ठीक है. This is what? This is a type conversion. So type conversion is a process that converts a value of one data type into another data type. The value of one data type into another data type. That was the definition, one data type into
another data type. That was in this question, that is int, and that is what float. ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीप में और समझते हैं. ठीक है, एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूं टाइप कन्वर्जन की. इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन. अ टाइप कन्वर्जन इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ वैल्यू ऑफ ए वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप. किसी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू को क्या करता है बेटा, कन्वर्ट. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा टाइप कन्वर्जन है क्या. अब टाइप कन्वर्जन में भी टू टाइप्स के कन्वर्जन होते हैं बेटा. द फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड सेकेंड थिंग इज एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट क्या होता है बेटा, इट इज डन बाय द जावा कंपाइलर. हु विल डू, जावा कंपाइलर विल डू. डन बाय, यहां पर आप राइट कर लीजिए, डन बाय जावा कंपाइलर. ठीक है, एंड इट इज डन बाय द प्रोग्रामर, डन बाय द प्रोग्रामर और यूजर. ठीक है, और कोड मेकर आप कह सकते हैं. ठीक है, डन बाय प्रोग्रामर. ठीक है, क्लियर हो गया. सो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जन which is automatically performed by the Java compiler automatically. That is known as implicit time conversion. There are lots of another name of type implicit type conversion. इसको और अलग अलग different नेम से हम लोग जानते भी हैं. इसको आप राइट कर लीजिएगा. implicit type conversion को हम लोग automatic type conversion भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, automatic type conversion, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं. ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कन्वर्जन लिख लीजिएगा. इसी को हम लोग टाइप प्रमोशन भी बोलते हैं. टाइप प्रमोशन, अगर ये वर्डिंग आ जाए एग्जाम में तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, टाइप प्रमोशन, वाइडनिंग कन्वर्जन, वाइडनिंग कन्वर्जन. ठीक है, WIDENING. ठीक है, क्वेश्चन भी बोलते हैं. तो ये सारे नेम है किसके, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के. ये क्या है बेटा, सब नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं. इनसे भी इनको आप बुला सकते हैं. ठीक है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन. ठीक, अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद जल्दी से समझेंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. ठीक है, सबसे पहले आता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन. कौन सा कन्वर्जन बेटा, implicit, that is done by the Java compiler conversion. ठीक है, चलिए implicit type conversion क्या है. It is done by the Java compiler. Different names we had already discussed. There are rules. What is the rules to convert one data type to another data type? By the Java compiler there are some rules, so you have to follow the rules. So rule number one is that if either operand is type of double, then other operand is to convert into double. ठीक है, क्या होगा ऐसे समझिए आप. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत इजी वे में. सपोज दैट कोई एक वेरिएबल है, जहां पर मैंने लिया है फ्लोट. क्या लिया बेटा, फ्लोट. फ्लोट में मैंने एक फ्लोट डेटा टाइप है, यहां पर मैंने लिखा है माई फ्लोट करके. ठीक है, ये एक वेरिएबल नेम है और ये एक डेटा टाइप है. मैंने यहां लिखा INT डेटा टाइप माई INT. ठीक है, ये मेरा एक वेरिएबल है माई INT नाम से. ठीक है, क्लियर है. मैंने ले लिया यहां पर बेटा डबल माई रिजल्ट, मैंने ले लिया रिजल्ट. ठीक है, देखिए ये जो टाइप कन्वर्जन है ये ऑटोमेटिकली होता है जावा कंपाइलर में, ये आप नहीं करेंगे. ठीक है, इट इज डन बाय द जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली. ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सिर्फ आपको. अगर ये लिखा हुआ है माई रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, माई रिजल्ट इक्वल टू माई फ्लोट प्लस माई इंट, मैंने लिख दिया माई इंट. ठीक है,
इतना क्लियर? अब ये आप समझिए दिस इज द फ्लोट वैल्यू, क्योंकि मैंने रिप्रेजेंटेशन ही ऐसा राइट किया, वेरिएबल का नहीं माई फ्लोट है, ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ फ्लोट डेटा टाइप है ये, ठीक है। यहाँ पर प्लस नहीं है, माई ये आई एन टी है, सॉरी आई एन टी टी, सो दिस इज व्हाट आई एन टी, इंटीजर टाइप। सो दिस वन इज फ्लोट टाइप एंड दिस वन इज इंटीजर टाइप, ठीक है। सो रिजल्टेंट आपका क्या होगा, इसमें क्या होता है बेटा, फ्लोट और आई एन टी वैल्यू को यू आर गोइंग टू ऐड, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू कन्वर्ट int value into float first. What Java compiler do? Java compiler सबसे पहले int वैल्यू को क्या करेगा, ये एक एक्सप्रेशन है, दिस इज एन एक्सप्रेशन, जावा में इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक्सप्रेशन है, टू वेरिएबल्स को हम ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में दो तरीके की वैल्यू है, एक फ्लोट है एक इंटीजर है। सो सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में एक रूल है कि सबसे पहले वो एक्सप्रेशन में क्या चेक करेगा, ये रूल आप लिख लीजिएगा, सबसे पहले वो डबल चेक करेगा, डबल। अगर एक्सप्रेशन में डबल डेटा टाइप है, कोई डेटा टाइप का एक कोई वेरिएबल है, ठीक है, और ये डबल डेटा टाइप अगर किसी के साथ ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके साथ भी, जिस वेरिएबल के साथ भी ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो अपने नेक्स्ट जिसके साथ ये डिवाइड हो रहा है या ऐड हो रहा है उसको भी क्या कर देगा, डबल डेटा टाइप, क्या कर देगा, डबल। अब आपका क्वेश्चन आता है सर डबल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर पूरे एक्सप्रेशन में, जैसे ये एक्सप्रेशन है इसमें फ्लोट और इंटीजर डेटा टाइप है, डबल है ही नहीं, तो क्या करेगा, तो चेक करेगा नेक्स्ट, अगर डबल नहीं है तो चेक करेगा फ्लोट, क्या फ्लोट है इस एक्सप्रेशन में, यस फ्लोट है, माई फ्लोट एक वेरिएबल है, किस टाइप का, फ्लोट टाइप का, फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। ये क्या है, इंटीजर टाइप है, और यहां पर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो भी वेरिएबल है या वैल्यू है इसके साथ जो ऐड होने जा रही है, इसको भी क्या कन्वर्ट कर देगा, किसमें, फ्लोट में, किसमें कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में, ठीक है। तो इंटीजर इज गोइंग टू कन्वर्ट इन फ्लोट, दैट इज नोन एज टाइप कन्वर्जन, एंड इट इज डन बाय द जावा कंपाइलर, it is done by the Java compiler internally, so that's why it is known as implicit type conversion, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, implicit type conversion बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट। सपोज दैट अगर इस एक्सप्रेशन में फ्लोट भी नहीं होता तो क्या होता, तो क्या चेक करता, अगर ये नहीं है या फ्लोट भी नहीं है तो फिर क्या चेक करेगा, नेक्स्ट में लॉन्ग डेटा टाइप चेक करेगा कि एक्सप्रेशन में कोई लॉन्ग डेटा टाइप तो नहीं है, अगर लॉन्ग डेटा टाइप है और इसके साथ कोई ऐड हो रहा है तो वो भी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लॉन्ग में, ठीक है। अगर सपोज दैट लॉन्ग भी नहीं है तो फिर क्या चेक करेगा बेटा, INT, क्या चेक करेगा, INT, ठीक है, लास्ट है INT, ठीक। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं फिर समझते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी बेटा, फ्लोट में आएगी, इस रिजल्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी बेटा, माई रिजल्टेंट। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर वैल्यू आपने डबल लिखी है ना, ठीक है, तो वैल्यू जो आएगी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, ठीक है। यहां पर जो भी वैल्यूज होंगी वो रिप्रेजेंट होंगी किसमें, डबल में, यहां पर आपका डबल वैल्यू आएगा क्योंकि यहां पर आप स्टोर कर रहे हैं डबल वेरिएबल में, ये भी तो एक वेरिएबल है डबल डेटा टाइप, यहां से निकलेगा ये पूरा ऐड होके यहां पर निकलेगा फ्लोट, अब फ्लोट वैल्यू जो स्टोर होगी इसमें किसमें, डबल में, डबल फॉर्मेट में, डबल भी क्या होता है, फ्लोट का बड़ा भाई डबल, ठीक है। तो वैल्यू किस में आएगी बेटा, डबल में आएगी, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए से एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसी एग्जांपल को लेते हुए कुछ चीजें हम लोग समझेंगे, बहुत इजी है और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपको आना चाहिए और इस क्वेश्चन से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने लिया डबल में मैंने लिख दिया माई डबल, ठीक है, माई डबल कॉमा माई रिजल्ट, क्या लिख दिया, माई रिजल्ट, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, मैंने डबल डेटा टाइप लेके दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है, डबल डेटा टाइप, फ्लोट एक डेटा टाइप ले लिया बेटा, फ्लोट कैसा है, ये फ्लोट डेटा टाइप है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर माई फ्लोट, ठीक है। ये एक वेरिएबल नेम है, किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। मैंने एक ले लिया INT माई INT, ठीक है, माई INT नाम से मैंने एक क्या ले लिया, वेरिएबल। मैंने एक ले लिया कैरेक्टर, आप लोगों के माइंड में ये चल रहा था ना कैरेक्टर के बारे में तो सर ने कुछ बताया नहीं, चलिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने कैरेक्टर भी ले लिया, ठीक है।
क्लियर है इतना? चलिए अब इसमें हम कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है, कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट माई रिजल्ट इक्वल टू माई INT, ठीक है, प्लस माई करेक्टर प्लस माई फ्लोट प्लस, यहां पर आप प्लस की जगह डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए या इंटू कर लीजिए, मैं इंटू कर ले रहा हूं, ठीक है, माई डबल. चलिए अब ये है आपका एक एक्सप्रेशन. ये क्या है बेटा? एक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टाइप की वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप है, ये करेक्टर है, ये फ्लोट है और ये माई डबल है. तो सबसे पहले ये रूल था, रूल नंबर 1 मैंने बताया था. सबसे पहले वो क्या चेक करेगा? डबल डेटा टाइप. स्टेप नंबर 1 है ना बेटा. तो सबसे पहले क्या चेक करेगा? डबल डेटा टाइप. डबल डेटा टाइप है इस पूरे एक्सप्रेशन में? यस है, बिल्कुल है. इस डबल डेटा टाइप का मल्टीप्लीकेशन, और पहले बात तो ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन. इसकी प्रायोरिटी हाई है तो सबसे पहले ये एक्शन परफॉर्म होगा. आप इस ऐसे देखेंगे, यहां पर प्लस ऑपरेटर है, यहां भी प्लस ऑपरेटर है और ये क्या है? इनटू ऑपरेटर. ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है किसकी? ये मल्टीप्लिकेशन की. तो मल्टीप्लिकेशन पहले एग्जीक्यूट होगा. अब मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. टू टाइप्स की वैल्यू है, एक है फ्लोट डेटा टाइप और एक है डबल डेटा टाइप. तो आपको रूल पता था कि डबल डेटा टाइप सबसे पहले सर्च होता है, इस एक्सप्रेशन में सर्च होगा. तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी हाई है? डबल की फ्लोट की? डबल की हाई है. सो यहां पर जो भी रिजल्टेंट आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो वैल्यू किस में आएगी बेटा? डबल में. किस में आएगी? डबल में. किस में आएगी? डबल में. ठीक. अब जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी डबल की वो किससे ऐड होगी बेटा? माई करेक्टर. ये भी किस में? ये करेक्टर डेटा टाइप है. ये किस टाइप का डेटा टाइप है? करेक्टर डेटा टाइप. और इनका रिजल्टेंट जो है वो डबल है. अब ये जो वैल्यू इससे ऐड होगी, यहां पे एडिशन ऑपरेटर है, ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा? डबल में. किस में कन्वर्ट कर देगा? डबल में. एडिशन होने के बाद क्या होगा बेटा? फिर डबल बन जाएगा. अब ये डबल जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो ऐड होगी किससे बेटा? ये किस टाइप का डेटा टाइप है? INT. ठीक है, INT वैल्यू डबल डेटा टाइप से ऐड होगी, डबल डेटा टाइप वैल्यू से ऐड होगी. तो क्या मिलेगा बेटा? इसमें भी डबल ही मिलेगा. ठीक है, और रिजल्टेंट जो होगा डबल वो किस में स्टोर हो जाएगा? माई रिजल्ट में. इसीलिए मैंने यहां पर डबल ले रखा था. ठीक है, अब समझ में आया? ये इस टाइप का जो इंटरनल कन्वर्जन होता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. ठीक है, ये स्टेप्स हैं. स्टेप्स नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, उसमें जो ऑपरेंड है उनका डेटा टाइप क्या है. अगर डेटा टाइप डबल है तो नेक्स्ट डेटा टाइप भी अगर डबल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर डबल से छोटा है तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा? डबल में. सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझिए, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है. तो यहां पर डबल बड़ी मछली है, फ्लोट छोटी मछली है. ठीक है, आप ऐसे समझिए, छोटी वैल्यू को आप इजीली बड़ी वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं. ऐसे समझिए, ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है कि छोटे, यहां पर आपने कुछ, ये एक छोटा सा बकेट है और ये बड़ी सी क्या है? बाल्टी है. और यहां पर ये आप डिब्बा ले लीजिए. ठीक है, बॉर्डर आपने फिल किया और इसमें डाल रहे हैं, डालते चले आ रहे हैं. ठीक है, क्या इसका सारा पानी इस छोटे सी बकेट में आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा. यहां पर क्या डेटा टाइप है? ये INT टाइप है. ठीक है, ये लॉन्ग टाइप है. बताइए किसकी वैल्यू हाई है? लॉन्ग की, ऑब्वियसली. तो ये क्या करेगा? INT की वैल्यू को इजीली ग्रैब कर लेगा. इसलिए क्या होगा? इसका डोमिनेंस ज्यादा होता है. ठीक है, डबल और फ्लोट में इसकी रेंज ज्यादा होती है डबल की, इसलिए क्या हुआ? डबल का डोमिनेंस हो गया. अब जो रिजल्टेंट हुआ वो भी डबल था. अब डबल वैल्यू ऐड हो रही करेक्टर, डबल का यहां पर भी डोमिनेंस है. डबल क्या है बेटा? यहाँ पर पावरफुल है, तो करेक्टर को भी डबल में कन्वर्ट कर देगा. आओ बेटा, तुमको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं डबल में. ठीक है, अब रिजल्टेंट क्या हुआ? डबल. अब डबल क्या हुआ? फिर से INT से चेक एडिशन हो रहा है यहाँ पे. सो डबल की वैल्यू फिर भी हाई होती है, इंटीजर की कम होती है. तो फिर क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा डबल में. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं. ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए एक जल्दी से छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं इम्प्लिसिट का, देन फिर हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन डिस्कस करेंगे. आई एम गोइंग टू टेक INT a इक्वल टू 5, फ्लोट
आई एम गोइंग टू टेक B8.2 F, ठीक है, क्लियर, एंड आई एम गोइंग टू टेक फ्लोट C सेमीकोलन, ठीक, SOP system डॉट आउट डॉट println, ठीक है। आप SOP नहीं भी राइट करेंगे तो यहाँ पर आपने C वेरिएबल ले लिया है, C इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक है, और वो किस टाइप का होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आप बताइएगा। वैसे मैंने इस टाइप का चीजें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। चलिए आप कमेंट करके बताइए, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। और एक क्वेश्चन और है, अगर हम इसमें ये राइट कर दें A प्लस B प्लस 25 प्लस 25, इसका क्या डेटा टाइप होगा, ठीक है, क्या वैल्यू शो होगी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और है जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। इंटीजर A इक्वल टू 60 आई एम टेकिंग, इंटीजर B I am taking 80 and double, I am writing double average, sorry, double average semicolon, average equal to A by B, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं आपको, ठीक है। ये एवरेज लिखा हुआ है, ए वेरिएबल नहीं लिखा है, ये एवरेज है, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप कन्वर्जन, दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। कौन सा टाइप कन्वर्जन है बेटा? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मीनिंग आप लोगों को कई बार मैं बता चुका हूं। एक्सप्लिसिट मीन्स फोर्सफुली, और बाहर से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट डन बाय द जावा कंपाइलर। हम जावा कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम टाइप कन्वर्जन करना चाहते हैं, ठीक है। सो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है, बट दे डोंट फुलफिल द प्रोग्रामिंग नीड एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी नीड क्या हुई ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू असाइन अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इफ यू वांट टू असाइन अ इंटीजर वैल्यू into a byte, if you want to assign an integer value into byte variable, so the type conversion will not perform automatically, because you know very well the byte data type is smaller in size. This is small, this is big. आप ऐसे समझिए छोटी सी बकेट, अभी मैंने बताया था प्रीवियसली भी, यहाँ पर एक पानी, यहाँ पर एक ये डिब्बा है, बॉक्स है, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने डिब्बा माना है। ये क्या है? एक बकेट है, बाल्टी है जिसमें पानी है। यहाँ पर अगर पूरा आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। इसका साइज आप देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, इसकी लेंथ देखिए और इसकी लेंथ देखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, ओवरफ्लो, ठीक है। तो इंटीजर डेटा टाइप की रेंज ज्यादा है बाइट से, INT रेंज इज ग्रेटर देन बाइट। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन परफॉर्म नहीं होगा, because the byte data type is smaller in size than INT. So recall that the byte data type can hold up to 8 bytes only, whereas integer data type can hold 8 bits, ठीक है, means 1 byte, or this can hold 32 bits, means 4 byte, clear? So such kind of conversions are performed forcefully by the programmer, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये क्या होता है बेटा? फोर्सफुली डन बाय प्रोग्रामर, क्लियर? चलिए इसको समझते हैं एक बार इस सिंटेक्स से। सिंटेक्स क्या राइट करेंगे हम लोग, ये भी पता होना चाहिए। Syntax is what you will write first data type in which you are going to convert,
और यहाँ पर एक्सप्रेशन, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी वेरिएबल है, एक्सप्रेशन में वेरिएबल बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं INT, मैंने राइट किया INT a इक्वल टू, ठीक है, INT डेटा टाइप है, ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रैकेट में, और यहां पर मैंने लिख दिया एक वैल्यू है फ्लोट टाइप 7.45। अब ये क्या कर रहे हैं, 7.45 इज विच काइंड ऑफ वैल्यू, इट इज अ फ्लोट टाइप, ठीक है। नाउ यू आर डूइंग टाइप कास्टिंग हियर एक्सप्लिसिटली, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में, और इंटीजर को आप स्टोर कर रहे हैं ए वेरिएबल, क्लियर। सो वेयर अ डबल वैल्यू, आप डबल भी कह सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, ठीक है। दिस वैल्यू इज टाइप कास्ट इनटू इंटीजर, ठीक है। सो व्हेन यू परफॉर्म ए कास्ट इट कैन लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेसिशन, as you know variable integer do not have any kind of fractional components, so whenever a float value is assigned to an integer type a fractional component is lost। आप यहां समझ लीजिए 7.45 है, ये आपका होल नंबर है, और ये इसके बाद क्या है, लॉस ऑफ प्रेसिशन है, ठीक है। ये पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 7 ओनली, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड एक क्वेश्चन है फ्लोट टेक्स्ट, उसमें ले लेते हैं स्लाइड में, वेरी इजी है, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन है, मैंने लिया फ्लोट x इक्वल टू 9.65 f, इंटीजर y इक्वल टू नहीं y ओनली, ठीक है। So y equal to I am writing int data type x. If I am going to print the value of x, what will happen, and what will the value of x and what will be the value of y, ठीक है। देखिए float the value of this x is what 9.65, ये कैसी थी बेटा, फ्लोट टाइप थी, तो आपको पता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, और जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो किसमें स्टोर हो रही है बेटा, y में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 ओनली, क्या आएगी बेटा 9, क्लियर, क्योंकि ये इंटीजर लेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो बेटा बाय डिफॉल्ट जो आपने ली थी यहाँ पे वो यही है, तो रिजल्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 9.65। सो यहां से एक कॉन्सेप्ट आया कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू, इट डज नॉट अफेक्ट, आप लिख लीजिएगा, इट डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू तो 9.65 ही थी ना, ये देखिए 9.65 ही तो थी फ्लोट की, बस आपने टाइप कास्टिंग करी, केवल इंटीजर पार्ट आपने ले लिया, कास्ट करके केवल इंटीजर पार्ट लेके और उसको स्टोर कर दिया y में, और y की वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है। सो टाइप कास्टिंग INT डजंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, so the data type of x remains float with the value 9.65 in other part of the program, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पार्ट में, ठीक है। तो इस टाइप के कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ओके, क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट, चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं फिर अपने सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। लास्ट एक एग्जांपल हम ले रहे हैं INT a इक्वल टू 80, गॉट इट, INT b इक्वल टू 20 मैंने ले लिया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक डबल डेटा टाइप, डबल एवरेज ले लिया मैंने, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर मैंने लिया एवरेज इक्वल टू, मैं क्या राइट कर रहा हूं, डबल ब्रैकेट में, ये टाइप कास्टिंग है एक्सप्लिसिट, आई एम गोइंग टू राइट एनी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज व्हाट, सॉरी a डिवाइड बाई b, ठीक। अब यहां पर मैं प्रिंट कराने जा रहा हूं SOP एवरेज, ठीक है। बताइए क्या रिजल्टेंट होगा, कुछ आइडिया,
देखिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने ये एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है। ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप। बी किस टाइप का, ये भी इंटीजर टाइप है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए मुझे। 4, ठीक है, 4 आएगा बेटा, क्लियर है। अब ये 4 वैल्यू का क्या हो रहा है बेटा, टाइप कास्टिंग हो रही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डबल डेटा टाइप। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 से इंटीजर से कन्वर्ट हो जा रहा है डबल में, ठीक है। और ये डबल वैल्यू स्टोर हो रही है किसमें, एवरेज में, और एवरेज को आप क्या करा रहे हैं, प्रिंट। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 4.0, दैट इज द आंसर, क्लियर। सो ये कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया, टाइप कन्वर्जन पूरा पढ़ा। टाइप कन्वर्जन में देखा टाइप कन्वर्जन क्या होता है, क्या इसकी नीड है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही टाइप कन्वर्जन कहलाता है। 2 तरीके के टाइप कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट डन बाय द जावा कंपाइलर, एक्सप्लिसिट डन बाय द प्रोग्रामर, ठीक है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है बेटा तो प्लीज कमेंट करिए, और जो प्रोग्राम मैंने दिए थे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में उनको करिए, ठीक है। ओके क्लास, so now I'm going to end our session. Good day to all, have a nice day.